Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about English class 7. We are going to discuss about exercise of unit number 4, grammar portion. Use of indefinite articles a and an. The choice between a and an is determined by sound. Okay? हम ए लगाना है या एन लगाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? साउंड से. साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट. ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट. ऐसा वर्ड जो कंसोनेंट से शुरू हो उससे पहले हम ए लगाएंगे. एंड एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड. और एन हम उस वर्ड के साथ लगाएंगे जो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो. If we wish to generalize a noun, we use the indefinite article. अगर हम किसी नाउन को generalize यानी आम तौर पे किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम indefinite article यूज़ करते हैं. A lion lives in a forest. Any lion and any forest in general sense. ठीक है, तो कोई भी lion और कोई भी forest हो सकता है. We are talking about general thing, then we use indefinite article. An ox is grazing in the field. Here an ox, that is not any particular ox grazing in a particular field. Okay, we are talking in general. A before consonant sounds. A book, a chair, a table, a man. And before vowel sounds. An apple, an eye, an ox, and ant. Special use, कुछ exceptional cases हैं. A before vowel sounding as u and verb. A union. You can see कि यहाँ पे vowel letter तो मौजूद है लेकिन हमने इसके साथ n नहीं लगाया because it is not giving vowel sound. यहाँ पे u मौजूद है लेकिन ये vowel sound नहीं दे रहा. यहाँ पे ये a sound नहीं दे रहा. We are not reading this onion, a onion. दिस वर्ड इज़ यूनियन, तो ये साउंड दे रहा है इसलिए इसके साथ हम ए लगाएंगे. इसी तरह ए यूज़फुल बुक. यहाँ पे भी यू जो है ये अ साउंड नहीं दे रहा. ठीक है, ये एक अवावल साउंड नहीं दे रहा तो इसलिए हम इसके साथ ए यूज़ कर रहे हैं. एन बिफोर कंसोनेंट साउंडिंग एज वॉवल. और एन, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने लगाया है एन आर. आर वैसे तो एच से शुरू हो रहा है, एच इज़ कंसोनेंट, तो हम कंसोनेंट लेटर के साथ एन नहीं लगाते. लेकिन यहाँ पे चूँकि एच साइलेंट है और यहाँ पे हमें साउंड मिल रहा है वॉवल साउंड, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन विद आर. एन आर, एन एम ए. ये देखिए एम ए से पहले भी हमें ए साउंड आ रहा है यानी कि वॉवल साउंड आ रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन विद एम ए. ओके, एन एम ए. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. The is definite article because it normally points out some particular person or things. ठीक है जी, ये we use it to point out towards particular person or things. किसी खास शख्स से चीज़ की बात हो रही हो तो उसके लिए हम the यूज़ करते हैं. He saw the teacher, meaning some particular teacher. The definite nouns and uncountable nouns, for example, the box, the boxes, the milk, are preceded by the. Fill in the blanks with definite article a or an. Birds of dash feather flock together. F consonant है so we use a. Birds of a feather. Bilal is dash businessman. B is consonant so Bilal is a businessman. Ali is dash engineer. Engineer is starting with vowel letter and sound so we will use an here. Ali is an engineer. Dash old man came to our home. An old man. Here is the vowel letter and sound both. An old man. She seems to be dash English. She seems to be an English. Vowel, letter and sound. Dash ons is enough. An ons is enough because there is vowel, letter and sound. Rabia is dash university student. Okay. ये देखें, this is the tricky one. ये start तो vowel letter से हो रहा है but it is not giving vowel sound. हम इसको एनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहे. अगर हम इसको एनिवर्सिटी पढ़ते तो हम इसके साथ एन लगाते क्योंकि यू का जो साउंड है वो है एनिवर्सिटी. राबिया इज़ एनिवर्सिटी स्टूडेंट तो फिर हम इसके साथ एन लगाते हैं, लेकिन चूँकि ये यूनिवर्सिटी है हम इसको यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे. राबिया इज़
डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए आएगा. राबिया इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. ओके. द नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए और एन और द एज मे बी suitable. Gold is dash precious metal. Is a precious metal. Do you see dash blue sky? The blue sky. खास आसमान की, नीले आसमान की बात हो रही है. She returned after dash hour, an hour. ठीक है, यहाँ पे vowel sound आ रहा है. The dash sun shines brightly. The sun shines brightly. Makkah is dash holy city. Makkah is the holy city. खास चीज़ की, खास जगह की बात हो रही है. Let us discuss dash matter seriously. The matter seriously. खास मामले, खास मैटर की बात हो रही है. That's why we are using the. Who is dash boy sitting there? Who is the boy sitting there? Okay? खास बॉय की बात हो रही है कि वो जो वहाँ बैठा है वो कौन है, उस खास लड़के की बात हो रही है. Pronounce the following words laying the stress at proper syllable. Okay. This is a new thing you can say. कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और उस पर सिलेबल के पे स्ट्रेस करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके. लुक एट दिस. जिस पोर्शन को उन्होंने अंडरलाइन किया उसको हम स्ट्रेस करेंगे. प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट. प्रेजेंट पे फोकस है, इसका मतलब है अवेलेबल, जैसे आप क्लास में प्रेजेंट बोलते भी हैं. प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट करना, डिलीवर करना, स्पीच, कुछ भी. ये देखें, इसे मीनिंग चेंज हो गया. स्पेलिंग्स आर सेम, लेकिन जब हम सिलेबल पर स्ट्रेस करते हैं और डिफरेंट साउंड देते हैं तो उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है. प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो स्ट्रेस है वो ट्रैक्ट पे है. कॉन्ट्रैक्ट, इट्स मीन डिक्रीज इन साइज, श्रिंक होना, कम होना साइज में. कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक हो जाना. और ये है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़, जैसे कि द पेंसिल इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, द स्ट्रेस इज ऑन ऑब्जेक्ट. Object, and this one is object. Object, the stress is on object. Object, इसका मतलब है प्रोटेस्ट करना, जैसे कि वो अदालत में कहते हैं ना, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, तो ये वो वाला. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे सेम स्पेलिंग्स के साथ जब हम सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है.